اللہ کا ایک ایک فضل گناتا جاؤں گا نا میری زندگی ختم ہو جائے گی، آئے واہ یہاں واہ، تک کہ موت کا فرشتہ میرے پاس آ جائے گا، بے شک بے شک میری روح کو نکال کے لے جائے گا، پھر بھی اللہ کا فضل میں نہیں گنا پاؤں گا، بے شک بے شک، اللہ کا فضل میں نہیں گنا پاؤں گا۔ بے شمار فضل ہے پیارے، اور اللہ کی رحمت بھی بے شمار رحمت ہے نا، حق ہے حق، بے شمار رحمت، بے شک رحمت الہی کی گنتی نہیں، لیکن قیمتی بات ہے، اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ آپ بولیں اللہ کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک کوئی شک، اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ ہمارے نبی جو ہم کو مل گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم کو مل گئے، یہ اللہ کا بڑا فضل، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہمارے نبی، سبحان اللہ، میں نہیں کہتا، خدا کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت رحمۃ للعالمین، اللہ نے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بے شک بے شک، سبحان اللہ، کائنات کے لیے رحمت ہے پیارے، سب سے بڑا اگر اللہ کا کوئی فضل ہے تو ہمارے نبی، اللہ کی سب سے بڑی اگر کوئی رحمت ہے تو ہمارے نبی، جب نبی مل گئے ہمیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی مل گئے تو پھر خوشی منانا چاہیے، بے شک، میں کہاں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، بے شک، میرے محبوب آپ فرما دو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، کیا کہتا ہے اللہ؟ سبحان خوشیاں اللہ، مناؤ۔ پھر کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ خوشیاں یہ خوشیاں منانا تمہارے لیے بہتر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، تمہارے لیے بہتر ہے، کس سے بہتر؟ تو سنیں، تم اپنے گھروں میں جو مال جمع کرتے ہو، مال جمع کرنے سے خوشیاں منانا تمہارے لیے بہتر ہے، بے شک، مناؤ خوشیاں، اور بحمدہ تعالیٰ سنی ربیع الاول کے مہینے میں نبی کی آمد پر، نبی کی پیدائش پر، نبی کی میلاد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اختر والوں آپ نے بھی خوشی کا اظہار کیا، اپنے انداز سے کیا، لیکن کیا، سبحان اللہ، کسی نے اپنے گھر کو سجا کر خوشی کا اظہار کیا، کسی نے اپنی مسجد کو سجا کر خوشی کا اظہار کیا، کسی نے اپنے مدرسے کو سجا کر خوشی کا اظہار کیا، کسی نے آل رسول کو بلا کر خوشی کا اظہار کیا، کسی نے پیر طریقت کو بلا کر خوشی کا اظہار کیا، کسی نے میلاد کی محفل سجا کر خوشی کا اظہار کیا، کسی نے نیا کپڑا خرید کر اسے سلوا کر اسے اپنے جسم پر پہن کر خوشی کا اظہار کیا، کسی نے جلوس کی شکل نکال کر خوشی کا اظہار کیا، کسی نے اپنا مال جیب سے نکالا اور اسی مال سے بازار سے اناج خرید کر لایا اور اسی اناج کو پکا کر لوگوں کو کھلا کر خوشی کا اظہار کیا، سبحان اللہ، پانی پلا کر خوشی کا اظہار کیا، کسی نے شربت پلا کر خوشی کا اظہار کیا، کسی نے اپنی ڈیوٹی کی چھٹی لگا کر خوشی کا اظہار کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آبا، سبحان اللہ، کسی نے اپنی نوکری کی چھٹی لگا کر خوشی کا اظہار کیا۔ آپ کہو گے آپ نے اپنی مرضی سے اظہار کیا خوشی کا، اور یہ ساری خوشیاں ہم مناتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ ابے نادان، پہلے قرآن کو پڑھ، قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کو سمجھ، بے شک، اور جب تو قرآن کو سمجھ جائے پھر اپنی زبان کو کھول۔ بے شک، قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، میرے محبوب آپ فرما دو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرو، اور یہ خوشی منانا تمہارے لیے بہتر ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان کہتا ہے اللہ، یہ آبا، خوشی منانا تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ جو مال تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک، تو بحمدہ تعالیٰ ہم سنی حضرات ہیں، جو بھی کرتے ہیں قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں کرتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک، نہ ہم قرآن سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں، نہ ہم حدیث مبارکہ سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں۔ سنی قرآن والا بھی ہے، سنی حدیث والا بھی ہے، سنی صحابی والا بھی ہے، سنی اولیاء اللہ والا بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسے معلوم ہے سنی کس کو کہتے ہیں؟ آج سنی کی پہچان سنیں، ہاں ہاں، سنی کی پہچان مجھ سے سنیں۔ آپ کہو گے سنی اس کو کہتے ہیں جو درگاہ پہ جائے،
वो सुन्नी है। दरगाह पे तो कुफार भी जाते हैं बहुत सारे। बेशक तो वो सुन्नी हो गए। बेशक आज हमारे गुजरात में ये है ना भाई, सुन्नी वो जे सुन्नी कोने कहवाय के जे दरगाह पर जाए ने एने सुन्नी कहवाय। अच्छा भाई उसको सुन्नी, ये सुन्नियत की पहचान है। अल्लाह अकबर दरगाह सुन्नियत की पहचान है। अहले सुन्नत की पहचान क्या है, क्या है? तो सुनो, सुन्नी की पहचान क्या है? सुनो, सुन्नी कहते उसे है जिसके दिल में हसद ना हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह अल्लाह सुन्नी की पहचान सुनो, ओह सुन्नी कहते उसे है जिसके दिल में कीना ना हो, वाह जिसके दिल में कपट ना हो, वाह जिसके दिल में जलन ना हो। सुभान अल्लाह। आसान लफ्जों में सुन्नी की पहचान बताता हूं। अता हो आसान लफ्जों इरशाद। में, ताकि आपके दिमाग शरीफ में मेरे जुमले फिट हो जाए। सुभान अल्लाह सुन्नी की पहचान सुनो, सुन्नी वो है जिसके सीने में कीना ना हो, कपट ना हो, जलन ना हो, हसद ना हो, बुग़्ज़ ना हो, जिसके सीने में नापाकी ना हो, वो सुन्नी है। बिहम्दिही ताला हम तमाम नबियों को मानते हैं। हाथ उठा कर बेशक हक है, मानते हैं, बेशक तमाम नबियों को मानते हैं। बेशक एक नबी का कलमा पढ़ा लेकिन मानते हैं तमाम नबियों को। बेशक बाबा आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने भी नबी आए हम सब नबियों को मानते हैं, उनका अदब व एहतराम करते हैं। बेशक और नबियों का अदब व एहतराम करना हमारा ईमान है। बेशक 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 अगर कोई किसी नबी की तौहीन कर देगा तो ईमान से बाहर, बेशक बेशक ईमान से बाहर। देखो हम मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती नहीं है लेकिन उनका अदब हम पर फर्ज। बेशक हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के उम्मती नहीं है लेकिन उनका अदब हम पर फर्ज है। फर्ज। हम ईसा अलैहिस्सलाम के गुलाम नहीं है फिर भी उनका अदब हम पर फर्ज बोलो ना फर्ज। फर्ज बेशक तो सब नबियों को मानने वाले को सुन्नी कहते हैं। मतलब कि सुभान अल्लाह अब कुछ लोग कहेंगे यार कि सारे नबियों को तो हम भी मानते हैं, गैर मुकल्लिद भी कहेंगे हाँ नबियों पर तो हमारा भी ईमान है। बेशक हाँ मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। नबी को मानते हो? बोले जी। बोले जिस तरह सिद्दीक अकबर ने माना है उस तरह से मानते हो? वाह वाह क्या वाह बात। सुभान बहुत सहाबा की बात करते हो, वाह, वाह, सहाबा वाह, ये, सुभान सहाबा अल्लाह। वो, सहाबा ये। जिस तरह उमर इब्ने खत्ताब ने माना है इस तरह तुम सुभान नबी को मानते अल्लाह हो? सुभान अल्लाह जिस तरह उस्मान गनी जुन्नूरैन ने नबी को माना इस तरह तुम मानते हो? जिस तरह मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने माना उस तरह तुम मानते हो? अरे ये सहाबा का मानने का तरीका तो देखो। सहाबा कहते थे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ये सहाबा के जुमले। सहाबा जब जब नबी को मिलते और नबी को कुछ कहते उससे पहले ये कहते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, सुभान अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। तो प्यारो जिस तरह सहाबा ने नबी को माना है इस तरह अगर कोई मुसलमान नबी को मानता है वो सुन्नी है। क्या सहाबा ने नबी से मदद नहीं ली? आज लोग नबी से मदद मांगना शिर्क कहते हैं। बोले मदद तो अल्लाह की बारगाह से ली जाती है, मदद अल्लाह की बारगाह से ली जाती है, नबी से मदद नहीं मांग सकते। नबी से मदद मांगना शिर्क है, नबी से मदद मांगना कुफ्र है, नबी से मदद मांगना बिदअत है। लेकिन प्यारो तू 1400 साल बाद पैदा हुआ और शिर्क की बातें कर रहा है। लेकिन मैंने तो सुना है अपने कानों से, मैंने तो हदीसों की किताबों को पढ़ा है, मैंने तो कुरान को पढ़ा है, मैंने तो सूफिया की महफिल में सूफिया की गुफ्तगू को सुना है, मैंने उलमाए हक की जबान से सहाबाए किराम की जिंदगी को सुना है। मेरे प्यारो सुनो, हदीस और कुरान में आता है कि जब जब सहाबा मुश्किल में मुब्तला हो जाते वो नबी को पुकारते। सुभान अल्लाह।
कहना मतलब कि सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह और बाबा जी बोले बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बगल में हमारे अपने आराम फरमा है, अपने आराम फरमा है, वो भी सुनते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। ए लख्तर के बासिंदों, तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि तुमने अपने मरहूमीन के सुनने के लिए ये प्रोग्राम को सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह बाबा, क्या बात, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। तो मस्जिद में भी सुनाते हैं, मदरसे में भी सुनाते हैं, बाजारों में भी सुनाते हैं, लेकिन आज मरहूम की रूह भी खुश हो गई हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहीं ये वर्षों के बाद जिक्र मुस्तफ़ा सुनने को मिला। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी, शरीयत मुस्तफ़ा में है, अगर कोई मुसलमान कब्रिस्तान में जाता है और कब्रिस्तान में जाने के बाद मरहूम को सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तो कब्र में सोने वाला आने वाले के सलाम को अपने कानों से सुनता है। हदीस पाक के जुमले, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कब्र में सोने वाला अपने कानों से सलाम के आवाज को सुनता है और सुनने के बाद वो कब्र से जवाब भी देता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जवाब कब्र से जवाब भी देता है। इतना ही नहीं, नबी ने फरमाया कब्र में सोने वाला आने वाले के चेहरे को भी देखता है। आने वाले के चेहरे को भी देखता है। इतना ही नहीं, उसे पहचानता भी है, उसे पहचानता भी है। तो बिहम्दिही ताला आज जिंदा तो जिंदा मरहूमीन भी सुन रहे हैं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो खैर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बात कहां से चली और कहां पहुंची। अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिल जाए तो खुशी का इजहार करो, और ये खुशियां मनाना तुम्हारे लिए बेहतर है, जिससे कि तुम अपने माल को अपने घरों में जमा करते हो। अब सुने, सहाबा किराम जब जब मुश्किल में थे ना, नबी को पुकारा। किसको पुकारा? नबी को। एक मैदान जंग में एक सहाबी रसूल हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े मशहूर और मारूफ सहाबी रसूल है। जंग में मुशरिक और कुफ्फार का तीर हजरत कतादा की आंख में लग गया, अल्लाह। और तीर लगने की वजह से आंख का जो डोरा था ना, वो निकल कर बाहर आ गया। अल्लाह। तीर लगने की वजह से आंख में जो डोरा था वो निकल कर बाहर आ गया। हजरत कतादा ने अपने आंख के डोरे को जमीन से उठाया, अपनी हथेली में रखा, हथेली में रखा, दर्द और तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए नबी को तलाश कर रहे हैं। तलाश कर रहे हैं मैदान जंग में। किसी से पूछा हमारे आका कहाँ है, कहाँ वो जगह पर है, फला जगह पर है। नबी को तलाश करते करते नबी तक पहुंच गए। नबी की बारगाह में पहुंचे, सलाम अर्ज की। मेरे आका ने फरमाया कतादा क्या हाल है, क्यों आना हुआ? हजरत कतादा ने कहा मेरे आका, मुशरिक और कुफ्फार का तीर लगा, और तीर लगने की वजह से मेरी आंख का डोरा निकल कर जमीन पर गिर गया है। आका, मैं अपनी आंख का डोरा आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ, मेरी आंख को ठीक फरमा दे। सुभान अल्लाह। वाह वाह। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने हजरत कतादा की आंख के डोरे को अपने हाथ में लिया, अपना लुआब लगाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अपना लुआब लगाया और हजरत कतादा की आंख में वो डोरा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने महबूब के लुआब के सदके में हजरत कतादा को शिफा अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान शिफा अल्लाह। अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। और हजरत कतादा फरमाते हैं पहले जो रोशनी थी ना मेरी आंखों में, लेकिन नबी का लुआब लगने के बाद रोशनी और ज्यादा बढ़ गई। सुभान अल्लाह। और ज्यादा बढ़ गई। ये तो एक सहाबा है। आइए दूसरे सहाबा की बात करें। किन किन सहाबा की बात करें प्यारे? नमाज जोहर भी खत्म हो जाएगी लेकिन बात खत्म नहीं होगी। वाह वाह वाह। सहाबा की बात करें। वाह वाह। तुम बिदअत के फतवे लगाते हो, सुभान तुम अल्लाह। शिर्क के फतवे लगाते हो,
सुनो, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत कर मदीना पहुंचे, जब नबी मदीना में पहुंचे तो मक्का के जो बासिंदे थे, मुसलमान जो सहाबी थे, उन्होंने भी मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे। मेरे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर एक पानी का कुआं था जो बड़ा खारा पानी आता था और उसी पानी से लोग परेशान हो जाते थे। कुछ लोग नबी की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे आका, पानी की बड़ी दिक्कत है, पानी की बड़ी तंगी है, एक कुआं है वो भी खारा है, यानी वो कुएं से जो पानी निकलता है ना वो खारा निकलता है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा अपने हुजरे से बाहर निकले, वो कुएं के करीब पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने अपना लुआब कुएं में डाला। सुभान अल्लाह। आज भी मदीने की गलियों में वो कुआं मौजूद है। बेशक क्या चीज ने उस कुएं का पानी पिया है, सुभान आज भी इस लबों पर वो पानी का असर है। मेरे मुस्तफा ने अपना लुआब कुएं में डाला। मदीने के मुसलमान फरमाते हैं, नबी का लुआब जाने के बाद वो कुएं का पानी शहद से ज्यादा मीठा हो गया, शहद से ज्यादा मीठा हो गया। तो मदीना वाले जब जब मुश्किल में मुब्तला होते नबी को पुकारते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चल के बोलो ना सुभान सुभान अल्लाह, दिल से कहो ना सुभान सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारो, जो सहाबा का अकीदा था ना, वो अकीदा अगर आपका है तो आप सुन्नी है। बेशक। क्या है आप? सुन्नी। अब सुने, बिहम्दिही ताला हम तो सारे सहाबा को मानते हैं ना। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्दीक अकबर से लेकर तमाम सहाबा, बेशक। मक्का फतेह होने से पहले जितने सहाबा थे वो तमाम सहाबा को मानते हैं। फातेह मक्का के बाद जो लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, सहाबी हुए, हम उनको भी मानते हैं। सुभान अल्लाह। सबको मानते हैं। दिल से कहूँ, हम अमीर मुआविया को सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मानते हैं अमीर मुआविया, डरो मत, जोर से बोलो ना, हज़रत अमीर मुआविया, जोर से बोलो ना। मुआविया, सुभान अल्लाह। ये डिस्ट्रिक्ट में एक बीमारी लागू पड़ी है, मैंने सुना है। सुभान अल्लाह। मौका कम मिलता है और ज्यादा मौका मिला तो इस बीमारी का इलाज मेरे हाथों से होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, होगा जरूर इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस्म की बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर है और रूह की बीमारी को ठीक करने के लिए हम जैसे गुनहगार हैं। बेशक, बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों ठीक होगी, जिस्म और रूह दोनों सलामत है तो प्यारे याद रखना, यकीनन जन्नत तुम्हारी है, यकीनन जन्नत तुम्हारी है। बेशक। तो हम तो अमीरे मुआविया को भी बोलो मानते हैं ना, दिल से मानते हो ना। बेशक, माशाअल्लाह, और मानना चाहिए क्योंकि वो सहाबी है। बेशक, सहाबी। कौन है? बेशक, सहाबी। बड़ा मकाम है, बड़ा मकाम। और सहाबी का मकाम में आपको क्या बताऊं, एक जुमले में मैं आपको बता दूं, अगर एक जगह पर सारे गोश्त, ख्वाजा, अब्दाल, कुतुब, वली, उलमा सबको जमा कर दे, सब मिलकर भी एक सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाहु अकबर। वाह। एक सहाबी के मकाम तक वो लोग नहीं पहुंच सकते। मेरे दोस्तों, सहाबी का इतना बड़ा मकाम, और मैं सहाबी का मकाम क्या बयां करूं, कुरान खुद कहता है रदियल्लाहु अन्हु व रदु अन्हु। सुभान अल्लाह। अल्लाह सहाबा से राजी, सहाबा अल्लाह से राजी। सुभान अल्लाह। अल्लाह सहाबा से राजी है, और अल्लाह ने कुरान में ऐसा नहीं कहा मैं अबू बकर से राजी, उमर से राजी, उस्मान से राजी, अली से राजी, सलमान फारसी से राजी, हजरत बिलाल से राजी, साद बिन वक्कास से राजी, अबू जर गफ्फारी से राजी। नहीं, मेरे खुदा ने फरमाया मैं नबी के सहाबा से राजी। सहाबा में अमीर मुआविया भी आ गए। अल्लाह राजी है सहाबा से, और सहाबा अल्लाह से राजी। तो तू बीच में उंगली करने वाला कौन है? बेशक, हक है। बीच में उंगली करने वाला कौन है? वाह 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 वाह। तो खैर राजी जाने मिल्लत इस्लामिया,
अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम सहाबा को मानते हैं ना, بے شک اور جو تمام صحابہ کو مانے وہ سنی ہے. سبحان اللہ کہو سبحان اللہ. چل کے بولو نا سبحان اللہ. سنی کی پہچان بتا رہا ہوں پیارے کہ سنی کہتے کسے ہے. اگر کوئی علی کو مانے اور امیر معاویہ کو نہ مانے سمجھو وہ سنی نہیں رافضی ہے. آئے کیونکہ سنی کے سینے میں نہ جلن ہے، نہ کینہ ہے، نہ کپت ہے، نہ حسد ہے. آئے ہیں الحمدللہ. واہ نہ ہمارے سینے میں امیر معاویہ کا کینہ ہے، نہ مولا علی کا کینہ ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک حق ہے نہیں ہے کینہ، اسی لیے تو سنی ہے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ کہو نا سبحان اللہ. چل کے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ اور آواز پہلے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ابے جو کینے والا ہے وہ قبر میں نہیں جینے والا. واہ 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 بے شک واہ جو کینے والا ہے قبر میں نہیں جینے والا. یاد رکھنا. اور ایک آسان جملہ بتا دوں آپ کو. حسد بڑی بیماری ہے اور اسی بیماری نے ابلیس کو شیطان بنایا. بے شک واہ 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 ابلیس کو شیطان شیطان بنایا. بنانے والی بیماری کا نام ہی حسد سچ ہے. ہے بے شک پیارے سنیں آپ. حسد ہی سے ابلیس شیطان بنا. بے شک ابلیس کیا بنا؟ شیطان شیطان. بنا اور یہ حسد اس کے عدد کتنے ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ہا سین دال حسد. علماء کرام تشریف فرمائے بابا صاحب بیٹھے. جو عامل ہوتا ہے نا تعویذ وغیرہ بناتا ہے اس سے بخوبی معلوم ہوگا. جی حسد 3 حرف ہے، ہا سین اور دال. چاول کے ساتھ کھاتے ہو وہ نہیں، یہ عربی دال ہے اور آپ کی گجراتی دال ہے. جی تو یہ 3 حرف کا جو عدد ہے نا، عدد کتنا ہوتا ہے؟ ٹوٹل 72. کتنا؟ 72 ٹوٹل. تینوں کا ٹوٹل لگا کر کہتا ہوں. اگر ایک ایک کر کے بولوں گا تو پھر وقت زیادہ ہوگا کیونکہ جوہر کا بھی ٹائم ہونے آیا ہے. حسد. اور دل کھول کر تقریر سننا ہے تو پھر رات کو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو گفتگو ہوگی. انشاءاللہ آپ بولو گے تو نماز فجر تک گفتگو کرنے کی قوت رکھتا ہوں. الحمدللہ رب کا کرم ہے. الحمدللہ رب کا کرم ہے. الحمدللہ الحمدللہ تو 3 لفظوں کا ٹوٹل کتنا ہوتا ہے؟ 72. اور نبی کی حدیث کیا ہے؟ میری امت میں 73 فرقے ہو گئے. کتنے فرقے؟ 73. گجراتی میں 73. سمجھی کیا ہے؟ توتے 73. اور انگلش میں 73. نبی کی امت میں اتنے فرقے ہو گئے 73. اور 73 فرقوں میں 72 فرقے جہنمی. اللہ غور سے سننا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر بہت قیمتی بات کر رہا ہوں. 73 میں 72 جہنمی اور 1 جنتی. سبحان اللہ اور وہ ایک فرقہ 73واں فرقہ ہے. کون سا؟ کہو نا سبحان اللہ. 73واں جو فرقہ ہے وہ جنتی ہے اور 72 فرقے جہنمی ہے. پتا چلا جس کے سینے میں 72 ہے، واہ 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 جس کے سینے میں 72 ہے وہ سب کے سب جہنمی ہے، اور جس کے سینے میں 73 ہے وہ جنتی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. قیمتی بات نہیں سمجھے؟ جس کے سینے میں حسد ہے وہی جہنمی ہے. پیارے سنیں آپ. اور جس کے سینے میں حسد نہیں وہ جنتی ہے. کیا ہے؟ جنتی. وہ جنتی ہے. تو اللہ کا فضل و کرم ہے ہم تمام صحابہ کو بولو مانتے ہیں. اسی طرح ہم سارے ولیوں کو مانتے ہیں. الحمدللہ. بے شک بے ہم غوث اعظم کی اولاد ہیں لیکن غریب نواز کو بھی مانتے ہیں. بے شک. دلو جان سے مانتے ہیں. ہم بدیع الدین زندہ صاحب مدار کو بھی مانتے ہیں. ہم احمد کبیر رفاعی کو بھی مانتے ہیں. ہم وارث دیوا کو بھی مانتے ہیں. ہم مخدوم اسد جہانگیر سمنانی کو بھی مانتے ہیں. ہم میرے دوستوں تمام ولیوں کو مانتے ہیں. اگر ولی میں چاہے پٹھان ہو تب بھی ہم مانیں گے. آئے ہیں واہ 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 مانیں گے. واہ واہ کیونکہ ولی ہے. بے ہم شک ذات سے نہیں مانتے. بے شک بے شک اوکے اگر اعلیٰ حضرت کی بات آئے تو ہم مانیں گے. بے شک مانیں گے نہیں سر جھکا دیں گے. اور سر ہی نہیں دل بھی جھکا دیں گے. واہ 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 دل بھی جھکا
वाह 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 क्योंकि हम सब वलियों को मानते हैं बेशक और हम बिके हैं एक वली के हाथों में। अये मैं बिक चुका हूँ, बेशक मुझे खरीद लिया है किसी ने, और मेरा खरीदार कोई और नहीं हुजूर शेखुल इस्लाम है। सुभान अल्लाह वाह वाह खरीद लिया है मुझे, मेरा मालिक है वो। बेशक हाँ, और अपने जुमलों का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। बेशक हक है हक जी, खरीदा है मुझे, और आपको भी किसी न किसी पीर ने, किसी न किसी वली ने खरीदा है। वाह 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 बेशक बेशक और वलियों के आगे बिक जाने में भलाई है, बेशक 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 वलियों के आगे झुक जाने में भलाई है। सुभान अल्लाह बेशक और जो झुक गया वो उठ गया, वाह 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 सुभान अल्लाह जो अकरा वो उखड़ गया, वाह 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 सुभान अल्लाह जो अकरा वली के आगे वो उखड़ गया, सुभान और अल्लाह जो झुक गया ना वो अबदाल हो गया, सुभान अल्लाह जो सुभान झुक अल्लाह गया वो कुतुब हो गया, वाह 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 जो झुक गया वक्त का इमाम अहमद रजा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो झुकने में भलाई है प्यारो, बेशक लेकिन सही जगह पर झुकना। हाँ जी, झुकना चाहते हो रब की बारगाह में झुक जाओ, मस्जिद में झुकना चाहते हो अल्लाह के सच्चे वलियों की बारगाह में झुक जाओ, कामयाब हो जाओगे। तो कहना ये चाहता था कि जिसके सीने में हसद है वो सुन्नी नहीं है। तो बिहम्दिही ताला हम सारे वलियों को मानते हैं, हम किसी भी वली की तौहीन नहीं कर नहीं कर सकते, न नबी की तौहीन, न सहाबा की तौहीन, न वली की तौहीन, न उलमाए हक की तौहीन। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अच्छा, एक बीमारी और भी है हमारे सुन्नियों में, उलमा की बहुत तौहीन करते हो आप जी। आ मौलवी आओ ने, आ मौलवी फलानों ने, आ मौलवी ढीकरों ने, आ मौलवी रमकरो, मौलवी मौलवी ना करो, हमारा भाई है, नाइबे रसूल है। आप मौलाना का मजाक नहीं, इल्म दीन का मजाक करते हैं। इसका मजाक इल्म दीन का और जो इल्म दीन की तौहीन करता है ना वो काफिर होता है, याद रखना। बेशक कौन होता है? काफी काफिर। क्योंकि आलिम जो होता है ना उसके सीने में हदीस का इल्म है। किसका इल्म? हदीस का हदीस मुबारका का इल्म, कुरान का इल्म, मंतिक का इल्म, फलसफे का इल्म वगैरह वगैरह। तो आलिम का अदब व एहतराम करना हम पर लाजिम है। आले रसूल का भी अदब व एहतराम करो और आलिम दीन का भी अदब व एहतराम करो। मेरे दोस्तों याद रखना, हमारे बीच में उलमाए किराम की तादाद बहुत कम हो रही है, याद रखना। बेशक धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अच्छे आलिमों की तादाद बहुत कम हो रही है। बेशक बेशक सही है ना बेशक भाई? बेशक बेशक हक है बहुत कम हो रही है। हक है हक है वरना एक दौर ऐसा था कि जब मैं तालिब इल्म था, और बिहम्दिही ताला मैं अपने आप को मौलाना कहता ही नहीं, आज भी मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूँ। बेशक सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैं इल्म सीखता गया, इल्म पढ़ता गया और अल्लाह ने मुझे गौस बना दिया। वाह वाह अल्लाह अल्लाह। अपने आप को तालिब इल्म समझो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, अल्लाह तुम्हें अफदल बना देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह तुम्हें अफदल बना देगा, अल्लाह तुम्हें गौस बना देगा प्यारे। तो खैर अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, जब मैं तालिब इल्म के ज़माने में था, उस वक्त दारुल उलूम में बच्चों की तादाद गालिबन 500 या 600 की तादाद थी। लेकिन इस दौर में जब हम दारुल उलूम में जाते हैं, देखते हैं, तो चंद बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, गिनती के बच्चे 30, 40, 35, कहाँ 600 और कहाँ 35। 10 साल के बाद तो 35 भी नजर नहीं आएगी, 35 भी नजर नहीं आएगी। यानी मुसलमानों के बच्चों में आलिम बनने का जज्बा खत्म हो गया जी। वरना हम पहले थे, मदरसे में पढ़ने जाते, हमारा जज्बा था, हम लोगों को कहते मैं आलिम बनूंगा, मैं मौलाना